Please give a big round of applause. I request dignitaries to take their seats. Warm greetings to one and all. On behalf of Chirayu KC Bajaj College of Education and Chirayu Srimati Kaushalya Devi Bajaj Adhyapak Vidyalaya, I take the privilege to extend my warm welcome to all. Today, we have gathered here for the lecture on a journey from being better to best. And we are fortunate to have Dr. Avdej Jha sir with us to enlighten on this topic. We welcome you, sir. We are also immensely blessed to have Dr. G.S. Parashar sir with us on this occasion. Heartiest welcome, sir. Before we proceed to the formal program, I request everyone to stand up for the Vidyapith Geet. Thank you everyone. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhana sampada, shatru buddhi vinashaya, dhipat jyoti namostu. This shlok reminds us that for every good happening, lighting the lamp will express the exuberance and fade away the darkness. To brighten and illuminate the day, to feel the glory of God everywhere, and to invoke the blessings of Goddess of Knowledge, I now invite all the dignitaries to light the lamp and garland the Ma Saraswati and the portrait of KC Bajaj sir.
अतिथि देवो भव इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमें गेस्ट प्राप्त हुए हैं अतिथि के रूप में, मैं उनका आपको एक परिचय देना चाहूँगी। I am delighted to introduce our guest, Dr. Avdhet Jasa, who has warmly accepted our invitation to join us today. Sir is a principal at Srimati BCJ College of Education, Khambat, Gujarat. He is also working in the capacity of Chief Editor, Voice of Research Journal. Doctorate in Education and postgraduate in Mathematics and Education with more than 23 years of rich experience. Sir is an accomplished individual in the field of research and education. He has published 13 volumes and 51 issues as Chief Editor of Voice of Research Journal. He has got 12 books published on various subjects in Hindi, Gujarati and English under reputed publications like Taylor and Francis and McGraw-Hills. 22 poetries in reputed journals, 32 research papers and articles. A psychological test is also credited to his name. Skilled in multi-language understanding ability, teacher training, psychology, research methodology, creativity and human values are his areas of interest. With his exceptional oratory skills, he has delivered more than 75 lectures at national and international level. With his proficiency in research, he is currently acting as a guide and mentor to 7 PhD aspirants and 9 scholars have already awarded with PhD. Sir has always believed in that we can be the richest in the world provided we use the resources effectively and efficiently. And he has proved that through his work. We are fortunate to have you, sir, with us today. Now I request Principal Dr. Nidhi Mathur ma'am to welcome sir and felicitate. I request ma'am to give a memento. Ma'am, यार देखिए इधर. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We are blessed to have Professor Dr. G.S. Parashar, sir, an exemplary leader and a person with a distinct vision. Sir is a former Pro Vice Chancellor, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj Nagpur University, former Director UGC Academic Staff College, former Dean Faculty of Education, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj Nagpur University, former Professor and Head PG Department of Rashtra Sant Tukadoji Maharaj Nagpur University. Sir is a recipient of Best Teacher Award from Government of Maharashtra 2004. Sir is also known as the icon of Rashtra Sant Tukadoji Maharaj Nagpur University for his major contributions in examination system and reforms like advanced moderation, early scheduling of exams, strict monitoring mechanism and timely declaration of results. He has also been instrumental in modernizing the university press and publication department. Sir is a researcher and a teacher par excellence. More than 62 students received their doctoral degree under his guidance in the Faculty of Education. He has efficiently worked in different capacities and left his indelible mark. Sir is also working for the welfare of the students, teachers and education fraternity since last 40 years. He has also been active in the social sphere to remain connected with the society at large. The words are short to describe the sir's work and achievement. Thank you, sir, for your august presence and always giving us guidance in the right direction. I request Principal Ma'am, Dr. Nidhi Mathur, to welcome sir and felicitate sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would also like to take this opportunity to welcome our principal, ma'am, Dr. Nidhi Mathur, a guiding light and driving force. Her constant and unwavering support inspires
and makes everything possible. Now I request Dr. Reema Solanki ma'am to welcome the principal. Education is one of the pillars that enlighten the minds and ensure to make better tomorrow. And Chirayu KC Bajaj College of Education, Chirayu Srimati Kaushalya Devi Bajaj Adhyapak Vidyalaya is committed to produce teachers with skill, knowledge and compassion. The institution is always committed to provide quality education and guideline to students for their professional growth. The organization of this guest lecture is one of such effort towards the commitment. And yes, this is the high time to listen enlightening words from our guest, Dr. Avdhej Jha. Sir, the stage is yours. All the teachers, staff, faculty, and my dear training teachers. Namaste and good evening to all. It is something special. I've been coming here since last 10 to 15 years. This is the second time, third time, I'm coming here. All the time, मैंने कुछ खास देखा है और वो मैं अभी बताना भी चाहता हूँ. हर बार मैंने देखा है एक नया उभरता चेहरा और हर बार मैंने ये भी देखा है कि कभी हमने जिसको कहीं एग्जामिनेशन में इवैल्यूएट किया है वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. This is something great and huge, and this is something what we can call an achievement. It is success also of education or the outcome of the education. Things should grow and develop. कोई भी बीज डालते हैं तो बीज अगर अंकुरित नहीं होता है तो मतलब नहीं बनता है. तो यहाँ मैंने वो चीज हर बार देखा है और हर बार प्रसन्नता होती है. अभी भी मैडम बोल रही थी तभी she delivers. It is something very special and we need to learn. You all need to learn that thing. कि हम जब यहाँ पर आते हैं बोलते हैं तो हमारा जज्बा कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, हमारा टोन कैसा होना चाहिए. That is something, and the eye contact you do, that is also very, very important. Friends, today we all are leading, I think something, we are leading life, but don't know whether to say it is huge, astonishing, I don't know, you may think of. We all have nearly everything. लगभग सबके पास सब कुछ है. यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे तो मैं इतनी आशा रख सकता कि तो उनकी जितनी जरूरत है उतना तो उनके पास है और है, बढ़िया से है. पर फिर भी क्या हम लोग आप देखिए आपके पास जो चाहिए जितना चाहिए उतना तो है, पर क्या हम संतुष्ट हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, ऐसा कह सकते हैं? उतना है जितना आपको चाहिए, पर फिर भी हम वो नहीं कह पाते हैं. There is something, कुछ तो है जो मिस कर रहा है. आज आप लोगों के पास, स्पेशली यहाँ जो बैठे हैं आप लोगों के पास एक विजन भी है. आपने फाइनल कर लिया है कि मुझे वहां पहुंचना है, टीचर बनना है, हाई स्कूल हो, प्राइमरी हो या कॉलेज हो, फाइन. बट यू हैव अ गोल नाउ एंड इट इज फिट एंड फिक्स कि हम टीचर बनेंगे. नियरली 99, more than 90% ऑफ यू विल जॉइन द टीचिंग प्रोफेशन. है ना? कोई है ऐसा जब एक बीच में सोच रहा है कि नहीं मैं टीचर नहीं बनूंगी या बनूंगा? फाइन. आपका गोल भी फिक्स है, आपके पास सब कुछ है भी, फिर भी कहीं कुछ खालीपन सा है. हम साथ साथ बैठते हैं पर फिर भी हमें ये देखना है कि हम साथ में हैं या नहीं. बैठते तो हैं साथ साथ
पर साथ है या नहीं ये देखना है। अगेन कुछ तो कमी है। शिक्षा, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो गांधी जी कहते थे कि शिक्षा का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के उत्तम अंशों को बाहर लाने में मदद करे और उसका विकास करे। विवेकानंद भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इन ह्यूमन और मैन और एन इंडिविजुअल। हमारे अंदर तो है ही सब कुछ, इसे बाहर निकालना है। अरे कौन निकालेगा? दशहरा में खूब सारे मैसेज आते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, एवरी फेस्टिवल, ईद हो या whatsoever, in every festival we have good messages। और हर मैसेज में एक चीज तो कॉमन होता है, विक्ट्री, विक्ट्री, ठीक है, और the good wins over the evil, good wins over the evil, that is common in any festival। But then too, can we feel that goodness? इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, एक दिन 15 अगस्त आया, उस दिन झंडा लहरा लिया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का मैसेज जो सामने से आया वो हमने फॉरवर्ड कर दिया, एक दूसरे को विश कर दिया। कई लोग तो 100% श्योर पढ़ते भी नहीं होंगे, इंडिपेंडेंस डे आया तो चलो जाने दो, इसको इसको भेजना है, भेजो, वी डू दैट। 26 जनवरी, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे तो सेलिब्रेट ही नहीं होता है, भूल गए कौन सा दिन है चिल्ड्रंस डे? आपको इतना याद है, अच्छी बात है, याद रखिएगा, आपका दिन है, हमारा भी दिन है, हम भी बच्चे ही हैं। हाँ, so that these days, why do we celebrate one day? I have seen a problem. Mother's Day, is it a day to celebrate? Every day is Mother's Day. कौन सा दिन है? आप लोग अभी हर रोज, मैं तो अभी इस उम्र में भी, मेरी माँ जब तक मैं नहीं जाऊंगा खाना नहीं खाएगी और रुकी रहेगी मेरे लिए, 2 घंटे लेट भी हो जाए तो रुकी रहेगी। चेरिश, थोड़ा बुरा भी लगता है, कितनी बार खा लिया कर, मेरा ठिकाना नहीं रहता, खा लिया कर। एक यार तू भी नहीं जाएगा, किसके लिए रुकूंगा, क्या करूंगी? ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? It is her love for me. It is her love for me. At the age, she is I think more than 70s. मैं पिछले 25 साल से सिर्फ 25 साल का हूँ, तो इतने सालों से भी अगर आप देखेंगे तो still my mother, she is waiting. Mother is mother. अब उसको हम एक दिन में कैसे जस्टिफाई कर लेंगे और ग्लोरीफाई कर लेंगे? Not possible. Not possible. Same way father, there is no way less. उसके बिना तो दीन दुनिया ही नहीं होती है। ये छत वो वही है, हम सबके ऊपर छत हमारे पिता, उस पिता को भी हम कितना देखते हैं, क्या देखते हैं? एक दिन फादर्स डे के दिन मैसेज कर दिया, याद रह गया तो ठीक है। अपने पिता को तो नहीं करते हैं, दोस्तों को कर देते हैं, बोले हैप्पी फादर्स डे, अभी वो भी बना भी नहीं है तो क्या? Independence Day, that we say, we need to think, is Independence Day a celebration of one day? And is it that saying Jai Hind or Jai Bharat, oh, it is enough to show the nationality? It is not that. I tell you, dear friends, it is something more. Independence is something what we need to cherish throughout the life, every minute, every second, every millisecond, even now. You all should be free and even I should be free. And when we say free, free means what? हम कहते हैं फ्री नहीं है, आज़ादी तो है। फ्री कहाँ नहीं है? फ्री तो है ना? हाँ बोलिए, कहाँ फ्री है बताइए? अभी मैंने बोला कि साथ में बैठते हैं पर साथ तो है नहीं, तो उसमें भी आपने मुझे हाँ कहा, हाँ बोले थे आप।
अगर आप साथ में बैठते हैं फिर भी साथ नहीं, तो काहे के फ्री हो गए? कहां से फ्री? We are not free. There is something which is disturbing us. थोड़ी कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन इतना सत्यानाशी कामकाज है, इतना सत्यानाशी कामकाज है कि आपका पूरा पतन कर देता है। How can you compare yourself with anyone else? Can you? And should you? You need to think over. You are you. You are unique. हमने साइकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक, individual differences. When we know about the individual differences, how can we compare ourselves with anyone else? I am I, you are you. You cannot be compared with me and I cannot be compared with you. भले हम सेम एज के हों सपोजेंगे तो भी नहीं हो सकता। मेरी चॉइस, मेरा विजन, मेरा गोल, मेरा नजरिया सब अलग हो सकता है आपसे। मेरा बैकग्राउंड it may be totally different than what you have. आप करोड़पति हो सकते हैं, मैं एकदम गरीब हो सकता हूँ, भले हम साथ हैं, पर ये इकोनॉमिक मॉनेटरी डिफरेंस, इट मेक्स द डिफरेंस। थोड़ा डिफरेंस तो आ जाता है। हाँ, अगर आप मन से मजबूत हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट देन टू यू नो आई कैनॉट बी कंपेयर्ड विथ यू एंड यू कैनॉट बी कंपेयर्ड विथ मी, पर फिर भी हम कंपेरिजन तो कर ही लेते हैं। देखो आप अभी जिस एज में हैं और जैसे तैयारी करते हैं, मार्किंग में भी मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि आप है ना मैडम, मार्क के लिए आते हैं कभी कि नहीं आते? मेरे 90% दीजिए मैडम। 90% हमको तो 60% मेरा सर, मुझे मेरे कॉलेज में 100वां नंबर दिया था बीएड में, 75%। I was the ranking 100 among the 100 student. मैंने बोला सर, मैं बोला सारे क्लास मेरे सबसे बेहतरीन, फिर भी मुझसे इतना प्यार क्यों? तो क्या फर्क पड़ जाता है? कितना चाहिए तुमको बताओ? अभी जब देखा मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे, उन्होंने देखा बोले आई नो फाइन, छोड़ दो, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, करो तैयार और दिखाओ, प्रूव कर दो अपने आप को। आई डोंट हाईएस्ट इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम। सारे लोग जिन्होंने मुझे सबसे लास्ट 100वां नंबर दिया था, 100वां रैंक दिया था, बेचारे चौकन्ने रह गए, हक्के बक्के रह गए। आई डिडंट माइंड, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट आई नीड टू नो माई सेल्फ। मुझे खुद को पहचानना है, मुझे इस पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आज हमको इस पहचान हम लोग नॉर्मली अभी जैसे यहीं पर आपके पास आई कार्ड होगा, ओके, व्हाई डू वी हैव दैट आई कार्ड? नो, वी नीड टू थिंक ऑफ, आज कहीं हमने कुछ मिस किया है, और मिस क्या किया है? वी हैव फॉरगॉटन दैट वी आर ह्यूमन। आप भी मेरे जैसे, मैं आपके जैसा, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए। ये इतनी छोटी समझ जो है ये हम भूल गए हैं, और चूंकि ये हम भूल गए हैं इसीलिए हमें पहचान की जरूरत पड़ती है कि अरे भाई बजाज कॉलेज का स्टूडेंट है, अरे अपना स्टूडेंट है, दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट हमारा नहीं, हम तो प्रोफेसर हैं। अभी आज यहाँ आया हूं तो क्या आप मेरे नहीं है या नहीं? हाँ होता है साहब के तो सारे हैं, तो प्रोवाइस चांसलर थे सर। In a way, I tell you that you know any student, अगर हम टीचर हैं तो कोई भी स्टूडेंट है वो हमारा बच्चा है। ये ख्याल जिस दिन हमारे अंदर आ गया, आप समझिए हमको किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो बच्चा भी मेरा है और मैं उसका शिक्षक। Society is ours. As a teacher, it is our job. Not only job, it is our moral responsibility also. आप समझिएगा बात को। अगेन, ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अगल बगल जो दूषण देखते हैं उसको कोशिश करें कि जितना हो सके उतना दूर करें। हम सभी की गारंटी तो नहीं ले सकते, अपनी तो ले सकते हैं। मैं अपने आप को बदल लूं, अपने आप को चेंज करूं,
मुझे देख के शायद 2 लोग और मुझसे प्रभावित हो जाए, 1 से 3 हो गए। आप लोग स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अगर ये ख्याल अच्छा लगता है आप उनसे शेयर करेंगे, आप भी शायद और 3 हो जाते हैं, 1 से 3 4 हो जाते हैं। Slowly and gradually change will come, but it comes. We are doing it because हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको हमारे माता पिता ने एक अच्छा समाज, एक स्वस्थ समाज दिया था। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस स्वस्थ समाज को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करें और वैसा ही समाज आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को दें। और ये सारे हमारे बच्चे हैं। It is not only about one child, मेरा अपना बच्चा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के लिए बात कर रहा हूँ। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कितने सामाजिक, ये हमको सोचना रहा। Today there are so many differences that exist between us. Community, caste, category, group, gender equality. और मुझे पता है आपको जेंडर इक्वलिटी की बात ही क्यों करनी पड़े, किस खुशी में। हमारे हिंदुस्तानी समाज में महिलाओं की जितनी इज्जत है उतनी किसी समाज में नहीं है। ऐसे देखने जाए सारी देवी, जितनी देवियां आदि के सबसे खतरनाक, जहां महादेव नहीं चलते वहां पार्वती और देवी दुर्गा आके सत्यानाश करते हैं। कौन मजबूत, कौन भाई? देवी। शक्तिशाली तो देवी है, शक्ति का नाम ही है, देवी का नाम ही है शक्ति। बट देन यू नो, एक हमेशा हमको ये बोलना पड़ता है जेंडर इक्वलिटी, जहां का वहां दिख जाता है जेंडर इक्वलिटी। इक्वलिटी तो आपको मन से लाना है, पहले आप समझिए अपने आप। हमने अपने आप को इतना घेर लिया है, मैं लड़की, मैं लड़की, मैं लड़की। क्या लड़की? इन अदर थिंग्स, मैं कल ही किसी को देखा था, जो वजन उठा के महिला जा रही थी, इतनी प्रसन्नता हुई, मैंने बोला वाह, कोई चिंता नहीं। फॉरेन कंट्रीज में मैं गया हूँ, मैंने महिलाओं को जो काम करते देखा है तभी, अच्छा यहीं पर मजदूर, मेरे घर ही मजदूर कुछ काम कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ वो पुरुष खड्डा खुद के तोड़ेगा, महिला इतना ठाठ से उठा के ले जाती है, 9 बजे से चालू करके 6 बजे तक लगी रहती है और बिना थकती नहीं है। They are doing something special and you all are special. What is the problem? The problem lies in our ideology. हमने ही अपने आप को वीक और फीबल समझ रखा है। हम समझते हैं कि हमको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। और जो करते हैं करने तो उनके करने से कुछ नहीं हो जाता है। आप लोग मुझे अच्छा कह दीजिएगा तो ही मैं अच्छा हूँ, ऐसा है? मुझे मालूम है मैं श्रेष्ठ हूँ। We have to have this feeling. अगर आप ये नहीं रखेंगे तो हर रोज आप जलील होते रहेंगे और आपको लोग परेशान करते रहेंगे। टीचिंग प्रोफेशन नीड्स दिस आइडियोलॉजी। और आप जब तक ये आइडियोलॉजी नहीं रखेंगे, आप में एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। एक्सेप्टेंस इज द की टू डेवलप एन एटीट्यूड। एक अच्छा एटीट्यूड कहां से आएगा? और वो एटीट्यूड क्या होता है? यू नो, any student should be free to tell you all and everything, to share with his or her problems. क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे छात्र हमारे पास बेझिझक अपनी समस्याएं लेकर आ सकते हैं? कितने? अगर है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए, और आप लोगों को ज्यादा सोचना है। और यहाँ पर आपको ये सोचना है कि हम क्यों नहीं जा पा रहे, हम क्यों नहीं जा पा रहे। हमारे बीएड कॉलेज का एक नॉर्मल वातावरण होता है। मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके सारे टीचर कोऑपरेटिव होंगे, आप जैसा बोलते होंगे, जो बोलते होंगे, आपके बोले तो हाँ बेटा कोई बात नहीं, क्या चाहिए, और एक समर्थन है आपके पास। और हाँ बेटा नहीं भी बोलते तो मूक समर्थन है, 100% बोले तू कर, हम है, कोई चिंता नहीं। What more do you want? But still, what you do? आपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। क्यों?
teachers are special. All your teachers are special. हर एक में कुछ ना कुछ खास तो है और है। आपको उनसे सीखना है, जिसमें जो खास है वो उठाइए, उसको उस चीज के लिए पकड़िए और उसमें से वो ले लीजिए। अब वो ऐसा मशीन नहीं है कहीं आ जाएगा, but every day you will have to go talk to them, share with them, sit with them, learn. Slowly and gradually you will develop. And आप समझिए, मुझ में एक क्वालिटी होगी, लेकिन अगर हम 8 लोग हैं तो और आपने हम 8 में से एक क्वालिटी एक्सट्रैक्ट कर लिया तो आपके पास 8 आप हमसे ज्यादा हो गए और आपके पास अपनी तो है ही है। एक ही दिन दो मिनिमम। Choice is yours. What to do, what not to do. Friends, it's high time. As a teacher, you have very high responsibility. आपको बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझने की बात है आम बात, पर करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसमें कुछ मैंने कुछ नया नहीं बोल दिया, सारे लोग जानते हैं। चीज इतनी है कि नया तब होता है जब आप कोशिश करते हैं, और जब कोशिश करते हैं तो अड़चने भी आएंगी। आप समझिएगा, जब आप अच्छा करते हैं तो अच्छा करने वाला तो एक ही होता है, उसको काटने वाले खूब सारे मिल जाएंगे। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि इफ यू कांट चेंज योरसेल्फ, व्हाई शुड आई चेंज फॉर यू? मैं हूं भाई, हम ऐसे ही हैं, क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा? पेट पीछे ये बोलोगे, बोलो जिसको जो बोलना है बोलो। एंड आई टेल यू स्टूडेंट्स बहुत होशियार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। वो भले बोलते हैं कुछ समझ तो उनको होता है कि बोले दमदार तो ये मैडम ही है, भले परेशान करते हैं इसको लोग, ना कि है तो यही। दे नो वेरी वेल टाइम भी, ना maybe I am the principal और मैं बहुत खतरनाक प्रिंसिपल हूँ और बेकार आदमी हूँ, तो मैं सब कुछ किसी को बहुत परेशान कर रहा हूँ, पर वो लेडी अच्छी है, आप मेरे सामने नहीं बोलेंगे कोई। मालूम है कि जहाँ साहब मुझसे चिढ़ रहा है तो मेरे सामने उसका अच्छा कभी नहीं बोलिएगा, पर मन में तो मालूम है कि ये आदमी बेकार है, वही अच्छी है। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, सो वी नेवर नीड टू थिंक ओवर एंड अबाउट दैट। अभी जैसे मैंने कहा कि किसी के सोचने करने से कुछ नहीं हो जाता है, हमारे अच्छे बुरे बनाने से। ये अच्छा बुरा भी क्या है? इट इज अ कंसेप्ट एंड इट इज अ पर्सपेक्टिव, है ना? टाइम बेग में आपके लिए अच्छी बात बोलता हूँ। अभी हमको कौन सा टीचर अच्छा लगता है? जो टीचर बोलते हैं बेटा नहीं आना है मत आ, कल से मत आना, चिंता मत कर, मैं हूँ। तो कितने परसेंटेज चाहिए? 95 दे दिया जा। तो एज ऑफ नाउ उसके लिए ऐसा होगा कि भाई ये टीचर तो कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है, बट यू नो आपका सत्यानाश करने में उसी टीचर का सबसे मेजर रोल है। आपको सब सीखने कराने से रोक दिया, वंचित कर दिया। आपको लगता है कि मेरा अच्छा नहीं हुआ है। 2 साल बाद जब आप क्लास में जाइएगा, पैर यूं होगा ना, बोलते नहीं होगा। इंटरव्यू में लोग फेल करते जाएंगे, बोले अरे लड़की कहाँ से की है, कौन सी कॉलेज से आई है? तब लगेगा कि अरे प्रभु मैंने लाख रुपया दिया भी से, और किसका? तो 4 कागज के टुकड़े का। आप लेते क्या है? फीस लाख रुपया है ना 2 साल की, और 4 जो नहीं आने वाला वो क्या करते हैं? लाख रुपए में 4 कागज के टुकड़े। That is not the skill. Teaching is all about developing the skill. आज सर हैं, अभी मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी सुना होगा, बेस्ट टीचर अवार्ड, छोटी मोटी बात नहीं, पूरे राज्य का श्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार। आज कुछ चेंज लाना हो तो उसके लिए आपको पहले दमदार बनना पड़ता है, आपका वजूद होना चाहिए, और वो वजूद बनाना छोटी मोटी बात नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, अथक परिश्रम, अब बिना रुके बिना थके चलना है और चलना। सफल होते हैं नहीं होते हैं कोई बात, पर चलते तो रहिए, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। जो हो गया वो लैंडमार्क, केप ऑफ गुड होप सुना है ना? कोई चला भले वहां रुक गया, पर उसके बाद आगे वास्को दा गामा पहुंचा यहाँ। ओके, सो वी हैव टू बी लाइक दैट। हम वास्को दा गामा नाम बने ना सही, केप ऑफ गुड होप तो बन सकते हैं, बनिए, दैट इज आल्सो फाइन। व्हाट आई मीन टू से दैट एज अ टीचर you have good and great number of responsibilities. Please help yourself. The society is yours. Children are yours. And don't restrict yourself with the narrow walls. जो ये खाली दीवारें है ना,
उन दीवारों से अपने आप को घेर के मत रखिए। कोई जाति वर्ण व्यवस्था ये सब कुछ काम नहीं लगेगा। काम लगेगा सिर्फ इंसान। मुझ में और आप में सभी में यहाँ से थोड़ा यूं कट करेंगे ना तो लाल 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 लिक्विड, जैसे हम कहते हैं खून, ब्लड वही निकलता है। दैट इज कॉमन। हड्डियां, दांत, आंख, नाक, they all have equal numbers. वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता। तो who are we to differentiate? As a teacher, अगर आपके मन में कहीं भी इतना सा भी एक पैसे का भी कोई भी डिफरेंस है, that is something pity. आप जैसा अपने बच्चों के साथ रहते हैं या अपने भाई बहन जो भी जिससे भी आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसके साथ आप जैसा रहते हैं वैसा आप क्लास के बच्चों के साथ रहिए। Then you are alike. आप डिफरेंशिएट नहीं करते। Forgiving is very important for a teacher. Tolerance and forgiving is very important. वो आपको रखना ही रखना है। Patience, it is must for you. 1, 2, 3, 4, 5, 10 बार एक्सप्लेन कर दिया फिर भी नहीं आता बच्चे को, वो टाइम पे 2 चाटा मारना मना है, सोचना भी नहीं है। ओके, 11 बार समझाइए और उतने ही प्यार से समझाइए। आपसे नहीं होता है, किसी दूसरे टीचर को बोले यार इनको नहीं समझ आता, थोड़ा देखिए। मैं भी मेरे समझाने से नहीं है, इनके समझाने से समझ जाए, इट्स फाइन। वी शुड सीक हेल्प। 8 लोग हैं हम लोग, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ओके, सो दिस वे you have to help yourself. Only then you can help your society to be better. It is your society, member. We have to start with every small idea that creates a difference. ये day celebration मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कीजिए, but it should not be restricted. Women empowerment के माध्यम Women's Day, मैं भूल गया, Women's Day, वो भी एक दिन। एक दिन क्या होता है? Every day is Women's Day. हमारे तो दिन की शुरुआत ही Women's को होती है। पत्नी सुबह सुबह उठाती है, हम अलार्म रखते ही नहीं, वही आग उठाते, बोले उठो, वही उठो, सुबह हो गई। तो we have to celebrate, we have to cherish, and this we can do only by giving due respect to each other. Let us initiate, let us start with ourselves, let us start with our colleagues, let us start with our neighbors, and when we do like this slowly and gradually, we will reach to one and all. सभी तक पहुंचे ना पहुंचे, जहां तक पहुंचे वहां तक जिंदा है, वहां तक इतना करना है और हमेशा एक शिक्षक बने रहना। शिक्षक ना सही, एक इंसान जरूर बने रहे, क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप हमेशा एक अच्छे शिक्षक बनेंगे बनेंगे बनेंगे। With this, I take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to the Bajaj family, KC Bajaj family, all the teachers, principal madam, Rashid sir, all of you. They have given me the opportunity. Madam, thank you so much for giving me the opportunity where I can interact with them. इनको देख सका, चेहरे तो आपके एकदम lightened हैं, and I am very sure you have the potential. मैडम, आप लोगों ने सभी लोगों ने अच्छे से तैयार किया अपने बच्चों को, चेहरे की चमक इसी तो दिखाई देती है कि तैयार हैं ये लोग किसी भी युद्ध में आगे बढ़ने के लिए। पर हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास कलम है, और उस कलम से हम किसी को भी घायल कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, हमारे शब्द, हाउ वी स्पीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो देखिए, अपने आप को इतने सबल बनाइए कि हमें कभी भी किसी हथियार के नहीं, हमारा शब्द वही हथियार, हमारी बॉडी वही हमारा हथियार, हमारा टॉलरेंस वही हमारा हथियार। एक थप्पड़ के सामने 2 थप्पड़ मारना आम है, लेकिन उसको माफ करना वो बड़ी बात है। Let us be stronger and strongest. With this, I thank all of you. Thank you so much. Thank you, sir, for your inspiring words and unfolding the secrets of being better to best. I hope our trainee teachers will imbibe the essence of your thoughts and ideas, and it will help them in their journey of being best teacher, best citizen, and even best human being. Thank you, sir. Now I request Dr. G. Parashar sir to guide us with his words of wisdom. Please, best speaker, my friend Dr. Krishna, Principal Dr. D. Babu, distinguished faculty members, faculty of college, and graduate students.
जी अलाउ के लिए और कक्षा में डॉक्टर झा expressive views or teachers in welfare industry. Now, in the Indian education system, in the light of new education policy, which is now in force, we are on the crossroads. And that increases the responsibility of the teachers. Teachers are role model for their students. Even in our own children have no blame on us on certain matters of field of education. We always tell, Mummy, उसी में टीचर ने कैसा होगा? Whether you are right or wrong. Teacher is always right in the mind of child. वहाँ से गुजरता है। तो टीचर्स को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सवाल होता है ना, वो टीचर के स्टूडेंट पढ़ ले, ये है आप बोल रहे। आप अपने ही बच्चों के रोल मॉडल नहीं है। सबसे बड़ी बात है वो आपको भी नहीं करना। ऐसा क्या है उसके दिमाग में चलता है? क्योंकि वो इनोसेंट चाइल्ड है। उसको अपना मम्मी पापा फर्क नहीं है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद वो बैठता है, देखता है और उसके दिमाग में इम्पैक्ट टीचर का पापा है वो लाइफ में। हमारे the entire life of any person is influenced by teachers personality. ये आप सोचिए, जैसा आपसे बात हुई क्या था कि बताया कि लाइफ में कई टीचर्स से मिलते हैं, कई टीचर्स से पास होते हैं, तो उससे प्रभावित होते हैं, उससे नाराज भी होते हैं। आप प्रभावित क्यों होते हैं? नाराज क्यों होते हैं? हर टीचर को हर टीचर का अनुभव होता है तो उसको पसंद करता है। हर दिन टीचर को पसंद करता है, बाकी टीचरों को नहीं। और एक ही टीचर के स्टूडेंट थे ना, एक ही टीचर है, उसने कुछ सीख लिया। और आने वाले समय में बात को समझ के चलिए। We always think that now B.Ed, M.Ed करने के बाद we think about placement for the livelihood. हमको नौकरी की आवश्यकता नहीं, नौकरी क्या मिलेगी? तो मिलना भी नहीं चाहिए। क्यों मिलना चाहिए आपको? दूसरों को बच्चों की जिंदगी प्राप्त करने के लिए। क्यों मिलना चाहिए? 24/7 सारा का सारा कंसेप्ट बदलता जा रहा है। हम 10th क्लास में जब पास होते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? 10th का रिजल्ट खुला, कहाँ जाते हैं? कहाँ? ट्यूशन क्लास ज्वाइन करने। ट्यूशन क्लास पे हमारा ज्यादा जोर है, रेगुलर क्लास पे नहीं। स्कूल कॉलेज के सामने दूसरे ट्यूशन क्लास के बोर्ड लगे कि नहीं? इधर मत जाएंगे, इधर आएंगे। क्या एक सिस्टम को रिजेक्ट करने वाला बोर्ड बाहर लगा हुआ है। और उस ट्यूशन क्लास में लड़के सीरियस समय पे पहुंचते, एब्सेंट नहीं होते, होमवर्क भी करते,
अभी कम भाई के बच्चे अच्छे जगह काम करती है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ के इंग्लिश देना चाहती है, अपने साथ हमारा बच्चा वो सब न करे जो मैं कर रही हूँ। Awareness among the parents is more now, and among the students also they know it, get the education. बाबा साहब ने ये बोला, बाबा साहब बेटे ने क्या बोला? सीखा, शिक्षा करनी। If you have power, money has no value. मनी की वैल्यू आपने कभी देखी है? जिनने देखी है उनको कोरोना पीरियड याद कर लेना चाहिए। हम तो चाहते हैं फिर से कोरोना आए, घर में तो परीक्षा नहीं, क्लास में जाने की जरूरत नहीं, तनख्वाह मिलने वाली है, क्या को करना पड़ेगा? क्योंकि उन 3 सालों में जो 2 सालों में अपने पढ़ा नहीं तो चीजेगी, और उन बच्चों के हाथ क्या है आपको बता तैयार हो गए, रोड पे आ गए, रोड पे आ गए हैं, 10 साल बाद पता लगेगा वो पैसे से कुछ नहीं हुआ। इसने शुरू में किसने किसको जलाया, किसने किसका चेहरा देखा नहीं देखा, अरे हमने अपने माँ बाप को देखा, बोले क्या हो दूर से देख रहे, अरे वो भगवान ने तक बोला बंद करो, हमको कोरोना नहीं लगना, भगवान के दर्शन नहीं करते, तो करते थे क्या? गणेश उत्सव हो गए, कई त्योहार हो गए, कोई नहीं है, कोरोना ने आपको सिखा दिया कि मंदिर दूर है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। 21st century is responsible for the century of knowledge. जिसके अकाउंट में जितनी नॉलेज होगी उतना ही धनी होगा। कोई जरूरत नहीं है आपको आज नौकरी की सीख जाएगी 24/7 में अपन बोलते फिजिक्स उससे पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री उससे पढ़ाएंगे, बनाएंगे। इसी तरह से अब टीचर्स की खुद की इंडिविजुअल क्लास होगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। अब ऑनलाइन करोगे तो मोबाइल से एग्जाम होगा, मोबाइल यहाँ सबके पास मोबाइल है ना, कल में तो ये This is a very important tool for the build-up education. Teachers must aware that AI आ गया, artificial intelligence आ गया, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हमारे पास मोबाइल है, देखने का मोबाइल हमारे सर के ऊपर, इसके में फंक्शन ही नहीं मालूम, दो चार होती है, नंबर छोटा रखेंगे तो बोलेंगे क्या, इसकी ट्यून कब बदल जाती है, क्या बदल जाती है, हमारे बच्चे ही सब करते रहते हैं, हम लोग को पता है, इसका कोई फंक्शन नहीं मालूम है। बस व्हाट्सएप इधर आ गया तो खोलिए लेकर, बाकी उसका क्या उपयोग है हमारी पीढ़ी में, आज के बच्चे को सब एवरीथिंग ही नोज इट। क्लासरूम में बैठ के देखने लगता है, मोबाइल से आपका लेक्चर कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है, सुनता है, कोई जरूरत नहीं। ऑनलाइन तो परीक्षा के संबंध में जाएगी बुद्धों में, पेपर पर नहीं छपेंगे, सब ऑनलाइन होगा, सब ऑनलाइन। तो कब तक आप नीचे चलिए, कब तक सब चीजें चेंज होगी। तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इतनी तेजी से भागना है पीछे में। आपके दो बड़े पेरेंट्स को, अभी भी पेरेंट्स जो है रूरल एरिया में तो इंजीनियरिंग नहीं है, पढ़ाई लिखी नहीं है, तो मैं था मैंने रात के 11 बजे बच्चा अटक गया, क्या करेगा? मम्मी से पूछेगा, मम्मी सो गई है, काम चला के थक गई है, पिताजी को आते ही नहीं मैथमेटिक्स, फिर क्या? टीचर्स को तो आपसे बात करेगा, आप इन्वॉल्व कराओगे टीचर्स को। टीचर्स को अपना खुद की जैसे दुकान खुली ना है, नागपुर में सबसे ज्यादा दुकानें कहीं की खुली है, आपने देखी क्या? नागपुर में सबसे ज्यादा दुकानें कहीं की खुली रिसेंटली? अमृततुल्य चाय की दुकानें खुली, इसके बाद क्या की खुली? केक की, और हर जगह बैठे हुए क्या मिले? सब्जी वाले बैठे हुए, ये 3 दुकानें इंजीनियर चपरासी के लिए अप्लाई कर, क्लर्क के लिए एजुकेशन क्वालिटी भी नहीं है तो क्या होगा? अब चाय की दुकान खोलो, समोसा बेचो, उसमें ज्यादा पैसा है, पकौड़े बेचो, जहाँ से आप पैसे आते हैं, जहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि पकौड़े चलो काम करो, तो जरी पड़ता मैंने पकौड़े नहीं खाए तो आएगा वो थे
खाया, पापड़ नहीं खाया, जनी पर आए थे क्या पेट मार गरम पेट में नहीं है आप रस्सा चलता है पोहा चलता है अलग अलग सेक्टर में अलग एक कम्युनिटी अलग चल रही है, सब चीजें पॉजिटिव कर रही है। आप सोचिए कि इस एनवायरनमेंट में चीजें हो सकती है। हमारे क्लासरूम सिचुएशन को देखिए, हर क्लास में बच्चे ऐसे बैठे ना वैसे बैठे हुए और हम भाषण दे रहे हैं, अच्छे बड़े चोरी करना पाप है, दारू पीना नहीं चाहिए, बच्चे देख रहे मेरा बाप को रात में दारू पी लिया चोरी करते हैं, बच्चे तो सभी जगह से इकट्ठे हो रहे हैं, उनको वो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा, वो समझ ही नहीं रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। एक ही क्लासरूम में बैठे हुए एक ही असाइनमेंट का डाला तो है, बच्चे अलग अलग ग्रुप से गिर रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है ये चीजें कैसे आने वाले समय में अमेरिकन एक्सपर्ट का कहना है कि हम नहीं कह सकते कि 10 साल के बाद हमारा बच्चा कॉलेज जाएगा, पढ़ रहे हमको बात में हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं होता है कि नहीं? Why wasting your time on this type of things? तो बेसिक कंसेप्ट क्या हो रहा है कि हम फिर स्किल में आ गए, हमको सर्वाइवल के लिए चाहिए। हम 25 साल का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, नहीं मिलती ना स्कॉलरशिप, मिल रही कि नहीं? जब तक हम 25 साल के होते हैं, हमारे माँ बाप 60-65 की उनको एक आवश्यकता है कि उनकी नौकरी कैसे तो काम ही नहीं। जितने लोग आज किराए में पकड़े जा रहे हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप नेशनल हाईवे पे चल नहीं सकते, गाड़ियां बहुत चोरी हो रही है, डकैतियां हो रही है, कौन कर रहा है? पढ़े लिखे। पावर डिग्री है, कब तक बाप पैसा देगा? उस गाड़ी में पेट्रोल तो भरवाना पड़ेगा। अब आपको रिटायर 60 के पहले आपको जॉब नहीं लाना है, कितने दिन लग सकते? तो फिर क्या होगा? भी टीचर्स सिस्टम में हमने तैयार किया, हमने बच्चों को ऐसे तैयार किया, संस्कार ऐसे नहीं दिए, वेरी बेटर टू बेस्ट, चलिए बेटर टू लाइफ अपने ब्रदर भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस सब बात है। आखिर तक सीखते हम आप भी सीख रहे हैं। इंटरव्यू का जैसा होता है, आप हमारा ले लो तो आप हमें रिजेक्ट कर दो, हम आपका ले लो तो आप रिजेक्ट कर दो, हर बार चीज आती है, सबको सब चीज नहीं आती, पर इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू लेता है खुद ही नहीं मालूम उसको क्वेश्चन ऐसे आपको भी क्वेश्चन पूछो टीचर को यदि आज के बच्चे से क्वेश्चन पूछो तो जानता है मास्टर साहब जो है और क्या है ना पढ़ा रहे हैं उसमें मार्क दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो पीछे बैठ के सो रहे हैं, पीछे बैठ के बहुत अच्छा काम है, सामने बहुत तकलीफ होती है, पीछे सो सकता है, मोबाइल ऑन कर लो, लेक्चर अटेंड करो, हर किसी की क्या करते हो? टीचर्स टीटीआई में जो बीएड में लगे पास नहीं हो रहे, बीएड यहाँ पास हो रहे हैं, वो टीचर्स के क्यों पास हो रहे? कॉलेज नहीं जाते, जो कॉलेज आएगा वही पास होगा, टीचर को लीजिए बीएड की डिग्री लेकर कोई फायदा नहीं है, आप हो जाइए टीचर्स की डिग्री है, कॉम्पिटेंट टीचर, उनका आपको मदद ही नहीं। अच्छा तो मेरे लिए पैसा मिलना चाहिए, तनख्वाह बहुत भाव है, जो अपने बच्चों की चिंता में उनकी चिंता हमको। अरे आप क्लासरूम में है, लाइब्रेरी में है, टीचर्स अवेलेबल है और आप पूछ नहीं रहे, तो कौन आपको पढ़ाएगा? माँ बाप को चिंता नहीं, तो माँ बाप इतने परेशान है कि वो अपनी जिंदगी को निभा रहे हैं। अब घर तो रह नहीं गए, नो होम, एवरी होम टर्न्स इनटू दी, होटल में क्या होता है? आप जाइए होटल में, आप गए, जब जाओगे जब खाना मिलेगा ना, कोई कभी भी जाए कभी भी खाने के दिन, यही तो घर हो गया। कितने लोग हैं जो रात में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं? मतलब इसे बताना, सब घर का परिवार पूरा बैठता है, तो पूरा परिवार बैठता है, तो एक दूसरे से बात होती है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक दूसरे के सुख दुख को देखना है, तो गए जानवर जैसा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, अपने ह्यूमन वैल्यूज को लेकर छोड़ रहा है, हमने चीजों को कैसे सोसाइटी चल रही है, तो टीचर्स का जो रिस्पांसिबिलिटी आ रही है, इससे टीचर्स को ही देखने मिलेगी।
permanent monopoly sector. The student not going to listen to you very shortly. They have no respect. आपने कभी देखा कि आपकी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रहे हैं? हम लोग ना ट्यूशन में जा रहे हैं, उनको ट्यूशन में भरोसा है, आपको भरोसा नहीं। Relax, teachers relax, student. So you have to learn. If you want to become a language teacher, जैसे आपने बोला, तो you need human. That's आपने basic emotion होना human being. या आपने human being से देखिए कुछ भी हो जाए, कब पैसे मिलेंगे तो गंगा के नाक से निकल आएगी, गंगा के कब मिलने वाले, और गंगा गंगोत्री से जिस दिन teachers those who are going to provide with the values of the society, the society. So, limiting portion, you have to clear everything in the name of science and technology, because we have to be, teacher must know the use of the आई आ गया, रोबोट आ गया, सब चीजें आ गई, जो आप खेत में बीज होते हैं ना, बीज कौन सा निकलता है? पदबंध जो उस डेफिनेशन उसको तोड़ता है, उसको क्या होता है, तब जाके खत्म हो गया। समय में पानी ना गिरे, बीज against the revolution force, against the revolution force, आप इसका ही चले जाए, वहाँ दूसरी चीज़ है, हर जगह तो revolution force होगा, जो ऊपर जाएगा, उसको लोग नीचे खींचेंगे, so you are the number center, वो क्या कहता है किसी बकवास में विश्वास नहीं, अपन को बहुत टच करता, हम हमेशा बोलते, टीचर को भी अच्छे कपड़े पहनो, टीचर को राइट नहीं अच्छे कपड़े पहने, टीचर को सेवा नहीं देखनी चाहिए, जो समाज में उपलब्ध है वो टीचर को मिलने होगा। हमने एक क्या सोच लिया, टीचर ऐसा हो कि आगे कपड़े पहने रहे, गरीब रहे, एक हिंदुस्तान में एक ध्यान में रहते, एक गरीब ब्राह्मण था, एक राजा था, एक रानी थी, यहाँ से तो अपनी कहानियां शुरू हुई, दादी भी वही समझा दी। बच्चे एक समय के बाद अपने माँ बाप के हाथ का खाना नहीं खाते, दादी के हाथ का खाना खाते, तो माँ को तो पेशेंस ही नहीं है कि आधा घंटा उसके पीछे घूमे, कि भाई लग जाएगी, दादी खाएगी। बच्चे दादियों के भरोसे पैदा हो रहे हैं, कन्याधाय उस समय थी, देखो कन्याधाय उस समय बच्चों को तैयार कर रही थी, आज भी बच्चे वैसे तैयार हो रहे हैं। जब बच्चा आपका तैयार हो रहा है और आपके हाथ से नहीं खाता, इमोशन नहीं होता, आप उसको मारती हो, और आपको लगता है बच्चा है तो चॉकलेट दी तो खुश हो जाए, एक खिलौने दे तो खुश हो जाए, तो खिलौने चॉकलेट से बच्चों को कब तक बहकाते रहोगे? जितनी समझ में आ गया, चौथी पांचवी छठी तक तो बच्चा आपके साथ जाता है, 7वीं मुद्दा को भी तुम चल जाओ, हमें नहीं जाना, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में फिट नहीं पाता, he not fitting happy with you, so he educated. Same thing, every institution is in time. If the teachers are, students are not coming, it's an institutional. जो नहीं आते उनकी चिंता मत करो, गधों को सुधार, गधों को घोड़े बनाने का अपना काम नहीं है, गधों पे ईंट लादने का अपना काम है, जो काम गधा कर सकता है वो शेर नहीं करता, कुछ गधे भी चाहिए, कुछ शेर भी चाहिए, उनको क्या करो, जिसको तैयार करो, उसको पूरी से तैयार करो, वो टची हो गया, तो बेटर टू बेस्ट, हाउ यू टू डेवलप दिस वे, वही आपको याद आ गया, आपको एक ही बच्चा होता है, लगता तो शादी की देर से होती है, कहीं तो होती है, कभी तो जल्दी होती भी है, बच्चा भी पैदा होता है तो भगवान की कृपा से लड़का होता है, लड़की की भी भगवान की बात है, भगवान ने लड़का पैदा कर दिया, जेनेटिक ग्रोथ है, और आप एमएससी जेनेटिक्स में हैं, बीएच में हैं, आपके बोल रहे भगवान होता है, तो आपको इनके क्लासिक थ्योरी आपको मालूम नहीं हो, भगवान दे रहे प्रसाद चढ़ाएंगे, हर बात का प्रसाद, भगवान पास कर दो प्रसाद चढ़ाए, भगवान पास, बोले एक पेड़े में भगवान पास, तो भैया वो पेड़ हमें दे तो हम सब कुछ है ना, हमें ले लो, भगवान को पेड़ पर ये भी श्योर है, भगवान को जितने पेड़े रखो उतने वापस आते, आदमी के सामने रखो तो 2-4 कभी आते, भगवान की बात पक्का है, भगवान की आप ये समझिए कि what is going in the society, you must be aware of what is happening in the society, if you are competent, बाजार लगा हुआ सिगरेट पड़ता, सिगरेट पड़ता बाजार में आती हो, या सीतामढ़ी पड़ती हो, बाजार is attraction, not invitation, बाजार आकर्षण है,
इन्वेशन नहीं है। बाजार में पावर काय का है? आपके पास यदि पैसा है तो वही पावर, उससे बचे नहीं। वो पावर का पैसे नहीं है तो बाजार में ढूंढते रहो, कुछ नहीं ढूंढते रहेंगे। यहाँ क्या है पावर? नॉलेज। उस नॉलेज के साथ उस बाजार में टिके रहोगे। आने वाले समय में आप लोग यंग हो, आपको तैयार है, knowledge as much as you can deny it, is to become you. They have respect for the teacher, those who are delivering the very good student. They have faith in you. एक बच्चा है, लेकिन वो आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? जाओ चेन्नई, जाओ बम्बई, उनमें जाओ, बस स्टैंड पर खड़े हो, एयरपोर्ट पर खड़े हो, एक आध आदमी आता है, गुड मॉर्निंग सर, देखिए कैसा आ रहे हो? उनको साथ किया, वो सब बजाज का लोग मुझे नहीं शिक्षा आप चाहते हैं वो आपका रिकॉग्निशन है। अननोन आदमी के द्वारा अननोन जगह खड़े हुए एक स्टूडेंट आके आपसे पूछता है सर आप चाहते हैं आप कैसे आए? ये टीचर का रिस्पेक्ट और किसी का रिस्पेक्ट नहीं होता सिवा टीचर का। वो आदमी आपने क्वालिटी तैयार की, आप ऐसे कई बच्चे पैदा करेंगे अपने बच्चों को, वो आपके स्टूडेंट होंगे, जिंदगी भर उनके साथ चलोगे, जिंदगी भर वो आपका इनाम लेंगे, याद रखेंगे, वो आपकी चीज होगी, वो आपका भले सोचेंगे। तो आप नॉन प्रोफेशन में जा रहे हैं, इसे आपको टीचर बनना ही है, क्या करो बनना? टीचर बनना है आइडियल टीचर। मेरे जीवन में नहीं जाता कि क्या क्या चीजें लोगों की जिंदगी में अच्छी बुरी कंटिन्यूटी होती है, तो कोई क्या कह रहा है उसकी चिंता मत। दूसरों का सर्टिफिकेट लेने से जिंदगी चलती नहीं, अपने आप को अपने सर्टिफिकेट आपको मानना भी ठीक है। जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आप एंजॉय करें वो करो। ना अच्छे लोगों को लड़के मिल रही है, तो अच्छी लड़की को लड़के मिल रही है। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडवर्टाइजमेंट, हजार एडवर्टाइजमेंट मिलती है, 12 कंट्री को मिलती है। क्यों? मैच, वो तो मैच ही नहीं मिल रहा। common thinking, common person, love naturally attacks each other. वो चीज आपको चाहिए। तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन कैसे है? वो आपको पड़ेगा। इससे आप टीचर बन रहे हैं, with certain values, with certain commitments, don't compromise the values of the life. You belong or follow. They will come and everyone will say you are right. Shut up. Everything is available. इसे आने वाले थ्रेड्स को तैयार हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लेस करने जा रहा है। आप खुद उसकी तैयारी करो, क्लासरूम में जाने के बाद देख लो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे आपको क्वेश्चन है उसको उत्तर आ रहा है। क्लासरूम में आप परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कर दो, पढ़ दो, उत्तर आ जाएगा। क्या चीज करें? समझ लो, अगर आप क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोक सकते क्या? कि किसके सामने चलेगी? कोई बच्चा जोर नहीं लगा सकते, 17-18 कितने होते? 17-18 कितने होते हैं? उसको और लगा दो तो भर दिया नहीं। तो यूके में बैन कर दिया गया मोबाइल कंप्यूटर 12th क्लास तक में। बच्चों को आते ही नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं रहे, वो सब कंप्यूटर के साथ रहे। कब तक चलोगे? कंप्यूटर के साथ कहता है माँ बाप भी मिला ये कंप्यूटर है, बस सही है, टेस्ट में तो हो ही रहेगा, हो रहा है, कौन सा नहीं करोगे? इसलिए बेटर टू बेस्ट में चलना। ठीक, आज जो मालूम है आपको 94 मार्क्स मिलते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसका दूसरा रूप क्या है? आपको 94% मिले, आर यू हैप्पी? एटलीस्ट आई एम नॉट हैप्पी। क्यों? 6% नहीं मिले ना, 6 कहाँ गए? 100 में से 6% आपको आता ही नहीं है, एक नंबर में लड़ाई हो रही है, 6% नहीं आ रहा, मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा। 94 में तो कई 100 लोग खड़े हैं, 100 पे देखते खड़े। जो नहीं आ रहा है, जिसको आता है वो बेस्ट है। बेटर टू
सर्वे किया, लोगों को पता ही नहीं है, जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, लोगों को पता ही नहीं है चीज। तो ये जो चीजें आ रही है आपको रिस्पॉन्सिबल है, जस्ट लाइक इन योर लाइफ, think of a commitment, dedicate yourself, be a complete teacher, and if you are going to be a teacher, don't think you can job with them. You start your own classes. For आज भी ये 2-3 दिन में आपकी चीजें आएंगी, वो आपसे सीखेंगे, but you have to establish you are the best. And in this world, the society, better will never survive, best will survive. Because best person will get this job. 100 out of 100, he will be there. 109.9 is the better. एक नंबर में खड़े होने वाले अक्सर देखो अच्छा लोग पीछे खड़े एक नंबर में रियलिटी एक नंबर पर पीछे चलते जिसको ग्रांड एडमिशन होता किसी को ना आते वो कितने में थक हो जाएगा इज द बेस्ट की पोजीशन में पोजीशन होते गेट व्हाटएवर द बेस्ट यू मस्ट चूज बेटर इज ऑलवेज देयर बट ट्राई टू बिकम द बेस्ट अमंग द सोसाइटी देन यू विल सक्सीड थैंक यू वेरी मच Sir, your words are always an eye-opener for us and compels us to think in a different perspective. I'm sure that we will be always blessed with your presence and your wisdom. Now I call upon Dr. Dipti Bharti ma'am to express gratitude and give away the vote of thanks. कृतज्ञता कृतिकवस्य भूषणम् आभारः विनयामलक्षणम्. Gratitude is the ornament of noble deeds. Thankfulness is the sign of humility. Very good afternoon to all. On behalf of Chirayu KC Bajaj College of Education and Chirayu Srimati Kaushalya Devi Bajaj Adhyapak Vidyalaya, it is my honor and privilege to propose a vote of thanks for today's engaging guest lecture. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our distinguished resource person, Honorable Dr. Avdel Jha sir, whose insightful talk on a journey from being better to best has truly ignited our minds. Your words were not just a lecture, but a guiding light for our academic and personal growth. Thank you, sir, for gracing us with your wisdom and presence. We are immensely grateful to Honorable Dr. D.S. Parashar sir, whose continued encouragement and vision have always guided us towards excellence. I sincerely thank all the teaching and non-teaching staff for the dedication and coordination in making this event successful. Last but never the least, a big thank you to all dear students for your enthusiastic participation and respectful attention. Let us carry forward the learnings from today and strive towards becoming not just better, but the best versions of ourselves. Once again, with deep gratitude, thank you all.